Love you, Soumya. Good morning, Vijay ji. Good morning. Good morning, Priya. everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Nutan. Good morning, Sai Prasad ji. Namaste, namaste. Good morning. Namaste, namaste. Good morning. Good morning, Nutan. Good morning. Good morning. आज आंटी कहाँ गई? सविंदर आंटी. Good morning, Shanu. Good morning, everyone. Good Saitaji, morning. good morning. Good morning, Sunita. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Good Saitaji. morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. We love your morning vibrancy. Good morning. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Good morning. I'm Good just checking whether we morning. are. Good morning. Very good Priya. morning, everyone. Ma'am, प्रिया will तुम्हारा be लिखा हुआ है here डॉक्टर within दीप्ति वर्मा. हाँ, डॉक्टर दीप्ति वर्मा भी आ जाएंगे. हाँ, अभी उसमें मैम लिखा हुआ आने ही है. वाली है. नहीं Yes, तुम्हारे में yes, लिखा yes. हुआ आ रहा है डॉक्टर दीप्ति वर्मा. Yes, मैम मेरे में लिखा आ रहा है, बट मैं यस. मैम नहीं अभी नहीं आएंगी अच्छा है ना. ना. हाँ. या गुड मॉर्निंग मैंने एक सोनिया. बार चेक कर लेती हूँ कि. Good morning, Saitaji. गुड Yeah, मॉर्निंग. your गुड name is coming as Dr. मॉर्निंग. Deepti Verma. गुड मॉर्निंग नीरा. गुड मॉर्निंग. आंटी गुड मॉर्निंग. गुड आंटी मॉर्निंग. करोड़ है ना इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरुआत है क्या सोचो कितनी बड़ी Busy. Today we Mumbai girls are very happy. Today is the day when we meet Dr. Dipti. Yeah? Some puja going on. We should listen. Actually, I'm fixing the YouTube live thing. Just checking whether we are going live on the YouTube or not. Ma'am will be here any रिकॉर्डिंग moment. तो दिख रहा है प्रिया. दिख रिकॉर्डिंग रहा है दिख मैम. रहा है. रिकॉर्डिंग हाँ, दिख रहा है. रिकॉर्डिंग लाइव दिख रहा है ना खाली. खाली रिकॉर्डिंग. हाँ हाँ. पर लाइव YouTube स्ट्रीमिंग नहीं दिख का रहा प्रिया. लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिख रहा. यस मैम, मैं रिकॉर्डिंग वही दिख रहा कर रही थी. लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिख रहा है ना. वो ब्राउजर ना पता नहीं कभी भी अपडेट होने लग पड़ता है ना, तो फिर वो डिले हो जाता है प्रोसेस. आई एम जस्ट चेकिंग. ओके, मैं वो करती हूँ, मैं चैप्टर निकाल देती हूँ. मैम आ ही जाएंगी. Actually, ma'am is preparing to leave at like within a half an hour, na? So that is why she's doing a little. No, I'm here. थोड़ा सा काम हो No, जाए. my laptop is again playing up, so this is the reason I'm logged in from my phone now. Good morning, ma'am. Dipti. Good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Very Purvi. good morning, ma'am. Good morning, Deepti. Good morning, ma'am. So pretty early in the morning. Yeah, I mean, like flying in a bit. I've got my flight in 2 hours, but then I thought that at least I can take the magic and then in the car I can be connected for telepsychics. So, Priya, you'll have to share the screen. Are we logged in on like connected to the YouTube and recording? Ma'am, yes ma'am, we are not going live. मेरा ना ब्राउजर अपडेट होने लग रहा है, तो फिर वो लाइव हाँ, वाला वही काम नहीं हो. मेरा भी ब्राउजर अपडेट हो रहा है उसमें. एज में ही आ रखा है मैम. माइक्रोसॉफ्ट एज इज गेटिंग अपडेटेड एक्चुअली, दैट इज व्हाई. Today is not update holiday. Yesterday was update holiday. Poonam, are you logged in? Ma'am, give me 2 minutes. Give me 2 minutes.
नवदीप का, हाँ यस मैम कर दिया मैंने। आ गया तुम्हारा? मैम हाँ मैम, मेरा तो यहाँ पर तो हुआ नहीं, बट इफ इट डजंट हैपन ना, देन वी हैव टू लाइक आई रीलोड इट अगेन पहले की हाँ, तरह ना, वो कर लूंगी मैम। मैं तो कुछ आई करती एम हूँ। ओपनिंग द बुक नाउ। बुक खोल लेते हैं, आप शुरू करो, मैं देखती रहती हूँ उसको, हाँ, वर्क्स लाइक है मैजिक है ना। ना। हम्म। वर्क्स लाइक मैजिक, यस मैम। या सो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, सबसे इंटरेस्टिंग वो वाला टॉपिक होता है वर्क्स लाइक मैजिक, बिकॉज सुबह से लेके रात तक जैसे लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं ना, वैसे ही मैं इतना ज्यादा थैंक यू अपने वर्क के लिए होती हूँ। इट हैज गिवन मी आइडेंटिटी, इट इज समथिंग दैट आई लव, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट, जिस तरह से मेरा वर्क प्रोफाइल एक्सेल होता जा रहा है। हाँ जी पूनम। अच्छा, आई थिंक वो दो डिवाइसेस से लॉग्ड इन है। सो इस हिसाब से जितना ज्यादा, मतलब दिस इज अ क्लियर एविडेंस इन माय पर्सनल लाइफ दैट जितना ज्यादा हम अपने वर्क के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा करियर एक्सेल होता है। एंड वर्क के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती है, आर आइडेंटिटी, क्रिएटिविटी, मनी, नेम, फेम, ट्रैवल्स, accolades, awards, etc. All this comes from the work only, no? If there is no work, then we actually, so, और जितना भी पैसा हम रिसीव करते हैं इधर उधर से, like अगर कोई बाकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं, somehow they all come back to the main work domain जो हमारा होता है। So this is the reason, like ये chapter इतना ज्यादा significant important है, तो हम इसको पढ़ते हैं, and then of course like सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ये कैसे करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग? वो अच्छा नहीं, वो उसमें बहुत सारे वो होते हैं, मतलब पासवर्ड और वो सब, वो अभी आपको नहीं मालूम होगा ना, किया है कभी पासवर्ड के साथ में? नहीं मैम, मैंने नहीं अच्छा करा। नहीं, कोई बात नहीं, को हम अभी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे फिर इस वीडियो को। सो देयर आर मेनी पीपल, सो ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग लाइव ऑन यू, मतलब जो लोग लाइव पे देखते हैं, दे विल हैव टू वेट, देयर इज नो ऑप्शन। सो देयर आर मल्टीपल पीपल वाचिंग लाइव ऑन द यूट्यूब, लाइक उसमें आता है 9 तो बिल्कुल तभी होते हैं जब हम सेशन शुरू करते हैं। सो ऑल दोस पीपल वुड बी वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू हैपन, बट व्हाट टू डू, सो सून आई थिंक वी विल जस्ट फिगर आउट। मेरा जितना जल्द अगर मैं करूंगी भी तो फिर वो पता नहीं हो नहीं पाएगा, बिकॉज आई हैव टू लॉग आउट फ्रॉम माय लैपटॉप इन अ व्हाइल। सो एनी हाउ हम ये स्टार्ट करते हैं वर्क्स लाइक मैजिक को पढ़ना, एंड काइंड ऑफ फ्रॉम टुडे हैव अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। हम लोगों ने अपने वर्क को लेके, मैंने सबके मुंह से कंप्लेंट सुनी है दैट वर्क ऐसा है, वर्क पे ये है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, मेरे ऑफिस कोलीग्स ऐसे हैं, ठीक तरीके से पैसा नहीं आता है। सो ऑल दोज थिंग्स, अगर उस तरह की एनर्जी अगर हम वर्क डोमेन को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे जो बरकत होती है और द ग्रोथ एंड लाइक प्रोस्पेरिटी, दैट डजंट कम फ्रॉम वर्क। So all our lives we have not been very very grateful. In fact, people just want to leave their job and go to the other because they do not like it. तो उनको हम हमेशा शुरू से ये बोलते हैं that till the time you don't change the situation here, the same situation is going to follow you in your other work also. मतलब ऐसा तो इसीलिए make peace with where you are right now and start accepting everything very very gracefully, and with this determination that you will like that this job is good, with a very very happy note, leave it and then go to the other work. So this is what we've always been telling. So ये बहुत important aspect होता है for everyone, because पैसे का source हमारा business होता है, पैसे का source हमारा वो काम होता है, जो लोग ट्यूशंस ले रहे होते हैं घर पे वो उनका वर्क डोमेन है, जो होम मेकर्स होते हैं ये उनका वर्क डोमेन है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वर्क डोमेन है। सो वर्क्स लाइक मैजिक, तो मैंने ये वाला वर्ड लिख के अपने डेस्क पे ही लगाया हुआ है परमानेंटली, वर्क्स लाइक मैजिक, सो दैट मैं याद करती रहूं कि हर चीज के लिए मुझे ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अगर आपके वर्क से, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से अगर आपको 1000 रुपए भी आ रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड भर दो कि वो 1000 कब 1 लाख और 10 लाख बनेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, because by the law of attraction, whatever you are giving the gratitude energy to, that amplifies in life. It is a law, चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो, ऐसा ही होगा। ठीक है, सो और जितना ज्यादा अगर कुछ नेगेटिव सोचा है, बोला है कि मेरे कोवर्कर्स ऐसे हैं, मेरा स्टाफ बेकार है, वो करते हैं ये करते हैं, तो उतना ही ज्यादा सिचुएशन विल गेट फ्रॉम बैड टू वर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो या आई थिंक नीति आप पढ़ रहे हैं? यस मैम, नीति ही पढ़ रही है। अच्छा नीति, आप हैं कॉल पे?
If you're on mute, then you'll have to unmute yourself. I don't think वो अगर होती तो बोलती मैम शायद, है ना? Bye. Doesn't matter. पूनम आप पढ़ना चाहोगे अगर स्क्रीन खुला हुआ है तो? Yes, ma'am. हाँ, अच्छा Neetu has shared in this thing chat that she wants to read. Okay, ma'am. Anyways, I can also read and Neetu can also. Neetu, you can read if you want to, please. I'm absolutely fine. Poonam, go ahead and read. Thanks. Okay. Day 6 works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edge of edges. Then you fit into realm of magic. Tom Robbins, writer. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire? Ma'am, the screen is gone. Should I share the screen? So Poonam, I just started my computer, so इसलिए it is. Ma'am, you must have started. हाँ, वही लग रहा था मुझे. एक अच्छा, मिनट. सॉरी, फिर मैम आप शेयर कर रहे हैं? सॉरी हाँ, आ गया. Actually, ma'am has disabled the host participant sharing ना, वो वाला हो गया इस कारण से. And how is it, how can it be a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest person in the world? And how is it that two people can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to.
and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals down. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once-in-a-lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, "I'm so grateful for what?" The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day
that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. Magic practice number 6 works like magic. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what? And feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you so much, Poonam. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for giving the opportunity. In fact, I think I only... Neeti has given you the opportunity. You'll have to send a thank you note to her. I will, ma'am. It was in my this thing. I really wanted to, and मेरा वो chance चला, मतलब किसी और को मिल गया था. So thank you so much. No, ma'am, Thank you I'm for really becoming an sorry. I alchemist. want to apologize because, you know, yesterday I had to start some medicine, and I believe because of that, I just kept sleeping. Ah. I'm really sorry for No, yesterday. that's okay. Very That's okay. sorry. I normally never ever it's happened. You know, I'm really sorry. I want to really apologize for this. No. Please take care of your health. It will be absolutely okay. Everything has been good, ma'am. Diligently, I've been practicing every day. At Yeah. 5, I'm up writing everything, but I don't know these 2 days how what's happened. I don't know. Really sorry. It's okay. We are on record right now. Thank you so much and enjoy the best of health. Thank Okay, you. do that health wala practice again today. I'm Yeah, sure that yeah. it's going to. Thank Yeah, you. we'll also Thanks. pray for you. Thank you so much. Thank you. Thanks. Yeah, so about this chapter works like magic. The first, quote which is there by Tom Robbins says that if you have any skill, any job that you do, see that how you can contribute and make it better and better. So this is all coming from my experience that, in the last 10 years, the amount of gratitude I've had for my work, no matter how much hectic it went, no matter how much workload I was given, so there were people saying that जो काम करता है ना उसको और ज्यादा काम मिलता है. This is what I've always heard for the longest time from people कि जो बहुत diligent होता है या जो बहुत काम करता है उसको और काम मिलता है. मैंने कहा ये तो कितनी बड़ी privilege है, because there is nothing in the realm of magic that anything goes unnoticed and unacknowledged. Every small act behind the scene भी अगर आपने कोई thought अपने work के लिए बहुत अच्छा दिया होता है या negative दिया होता है, that gets acknowledged and it gets amplified और result आपको उसी हिसाब से मिलते हैं. That's very, very clear. So if you have been very grateful, if you've thought that how can I take my company to this level, or even if you have just written that, that thank you universe for increasing my, organization or company turnover to so much. So it's such a larger goal to have because everybody is so self-consumed these days. Right? I mean, like हम लोग actually अपने लिए अपना मेरा बस ये मुझे बस ठीक से सैलरी मिल जाए. अरे कैसे मिलेगी जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी? कंपनी ग्रो करेगी तभी तो आपका अप्रेजल 25% होगा, या 40% होगा या 80% होगा या जितना भी है 100%. मेरे जैसे लोग हैं जिनका 125% हुआ है अप्रेजल. You know what it means? 125%. Your salary is double plus 25% more. 25% more than double. So this is how it works. So when we are really focused, like मेरा जो dream number 2 है
उसमें मेरा वो पर्सनल गोल नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइज मतलब विश लिस्ट जो होती है ना, जो हम टॉप 10 ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, उसमें जो मेरा नंबर 2 का गोल है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल तक पहुंचाने का गोल है. That is not. I am part of it. I'm just a small unit of my organization. But that is where I want to see my organization grow. Obviously, by the law of attraction, अगर मैं इतना हायर गोल के लिए अगर प्रे कर रही हूँ और मेरी ड्रीम लिस्ट में है और मैं रोज अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ रही हूँ, obviously I'm part of it. My work or my whatever will get amplified. But मैंने इसलिए थोड़ी गोल लिखा था ताकि मेरा करियर आगे बढ़े. मैंने तो ऐसे ही गोल लिखा था because I really want to see the effort of all these people that I see in my organization, including my own. I also make a lot of effort that I really love. I love efforting for my job, for my work. Okay, but then, I want to see that company reaches that kind of a multi-crore, like turnover. So this is how it has to work, for all of us. So when we are very, very grateful for the smallest of the things at the workplace, it could be the colleagues that you fostered relationships with them, even now, whether you are an employee or whether you have a business, gratitude तो gratitude ही होता है. Gratitude के लिए तो आप 100 चीजें ढूंढ ही सकते हो, है ना? अगर आप होम मेकर हो या आप घर से काम करते हो. 1 second, दीपक, you can just call. So if you're a homemaker, तो घर में मतलब जहां से जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से पैसा आ रहा है, जहां से जिस पैसे से खाना बन रहा है, जिस पैसे से आपके घर में फर्नीचर्स आ रहे हैं, जिस पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, मतलब पे होता है, तो वहां के लिए हमको इतना ग्रेटिट्यूड लिखना है दैट द होल सिचुएशन टर्न्स अराउंड एंड देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन दैट हाउस. And this is how it works. It is all about energy that we are giving to a specific situation or a person or whatever it is. Okay, it could be a business, it could be that आप student हैं और आप अभी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप होम मेकर हैं, या आप एम्प्लॉय हैं, या जो भी जिस भी तरह का आपका वर्क डोमेन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. तो इस तरह से जो भी वर्क डोमेन है, हर चीज के लिए जब हम ढूंढेंगे ना पूरे दिन, आज का पूरा दिन, एक एक दिन में लोगों का इतना मॉन्यूमेंटल. आई विल हैव अ वेरी बिग शेयरिंग फॉर यू वेरी सून, लाइक इन माय वर्क डोमेन. I mean, something which is bigger than life, something that I would never have imagined, that kind of this thing, just by being grateful और ये practice कर करके. As I mentioned that मैंने works like magic अपने work desk पे रखा हुआ है, जहाँ पे मैं बैठती हूँ, मेरा लैपटॉप होता है, उसी के सामने मैंने वर्क्स लाइक मैजिक रखा हुआ है, ताकि मैं एक सेकंड के लिए भी आई डोंट फॉरगेट दैट आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माय वर्क, फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस. सो आई एक्चुअली जब भी ये प्रैक्टिस आती है, सो it is like I actually kind of dig in things to be grateful for from the past also. मतलब कोई अवार्ड, एक बार मुझे 5,000 का फ्लिपकार्ट, अब तो पता नहीं फ्लिपकार्ट होता ही नहीं होगा, एक बार 5,000 का वाउचर मिला था बहुत साल पहले मुझे फ्लिपकार्ट का. तो मुझे वो सब याद आता है दैट वाओ, दिस इज सो वंडरफुल. और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे लूं क्या, बिकॉज एज सच जरूरत तो हमें किसी चीज की होती नहीं है ना, मतलब एवरीथिंग इज ओनली टू. सो मैंने उससे वो जूसर मिक्सर ग्राइंडर एक खरीदा था, तब की बात है. आई थिंक इट मस्ट बी सम 7 years ago or something, from the same organization जहाँ पे मैं हूँ. So then I'm very grateful for all my previous jobs or previous work that I have done. I was teaching in a college, and then like earlier organization जहाँ मैं काम करती थी, so there I was a national head. So मैंने उन सब का सोच के निकाल के like I was really really grateful for all those work and all. And because of which my career is constantly accelerating in leaps and bounds, not just like that, in leaps and bounds it is accelerating. और जब से ये मैजिक बुक का ये वाला चैप्टर, तो ये मैं रोज करती हूँ, so ये जब करना शुरू किया उसके बाद से life at workplace or work wise has not been the same again. My work has fetched me so much of accolades from around the globe, here and there, कहीं से कुछ, and opportunities. So that way, so इसीलिए अपने वर्क के लिए आप जितना ज्यादा आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, ग्रैंड होगी, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, एंड दे विल बी अनइमेजिनेबल. सो इसमें वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू गिव टू योर वर्क, जो भी आपका काम है ना. एज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आप हो तो आपका वर्क डोमेन ऑफ कोर्स आपकी पढ़ाई है, आपका स्कूल है, आपके टीचर्स हैं, आपके स्कूल प्रिंसिपल है, आपके स्कूल में जो आप पानी पीते हो वो है, द एरिया वेर यू सिट एंड ईट योर लंच, टिफिन जहाँ पे खाते हैं, द वाटर बॉटल जो आप कैरी करते हैं, या जो डेस्क है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है जो स्कूल में, वो सारे उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना. एक एक टीचर जो पास में पढ़ाया, जिन्होंने आपको, जो अभी आपको पढ़ाते हैं,
तो वो सारे लोग जो सफाई कर्मचारी हैं जितने भी जगह के उन लोगों के लिए थैंक यू बोलना, उस बाथरूम के लिए थैंक यू बोलना जो आप यूज करते हो, बेसिन के लिए सिंक के लिए, उस फ्लश के लिए. सो फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हेन लिटिल थिंग्स यू ट्राई टू पुट योर ब्रेन इनटू और ढूंढना ग्रैटिट्यूड. कहते हैं ना, व्हेन यू फाइंड ग्रैटिट्यूड योर लाइफ चेंजेस. फाइंड का मतलब है डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. Okay, you have to find gratitude and your life starts changing. So for all of us, जो लोग employees हैं, जो लोग self employed हैं, जो business establishments में हैं, एक एक client, एक एक customer, जब आप उनके लिए thankful हो जाते हो ना, आप देखना एक दिन में monumental shift आता है. Because energy wise 17 seconds से आपका momentum change हो जाता है. तो आप सोचो कि अगर आप आज का पूरा दिन, आज की practice में हमको पूरे दिन grateful ही रहना है. ठीक है, हर तरीके से अपने वर्क डोमेन के लिए. होम मेकर्स जो हैं उनका हमने बता ही दिया है कि यूटेंसिल के लिए, इफ इट इज अ गैस लाइटर, if it is anything in the house that you have, all those people you've entertained in the house, furniture जो है, हर चीज के लिए एक एक पॉट जो है, अगर कोई प्लांटर्स हैं आपके घर में तो उनके लिए थैंक यू करना. और इतनी लग्जूरियस लाइफ मिल रही है, जो कपड़े खरीदते हैं, जो क्लोजेट्स हैं, उन सब के लिए थैंकफुल होना. So that is what is going to start attracting more, like career prospects and business growth in the life. People जो business में हैं, उनको अपने सारे clients की एक list, या मतलब जो भी आप एक जो Excel sheet जो हमारे system में होती है, वो निकाल के उसको thank you करना. Thank you and I love you for giving so much value and worth to my work. वो करना is very, very important to the cash box, to every item which is there in that store. और जो भी आपका प्रोडक्ट है, हम सब कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, है ना. कभी हम एजुकेशन सेल कर रहे होते हैं, कभी हम कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, कभी हम मार्केटिंग के प्रोफाइल में होते हैं, तो हम कुछ और. सो सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस में, है ना. कई लोग अपनी स्किल सेल कर रहे होते हैं. बट ऑल सेड एंड डन, वॉट एवर इट इज व्हाट वी नीड टू बी वेरी, वेरी ग्रेटफुल फॉर. और उसमें अपना वो, जैसे कभी भी कितना आप एफर्ट कर रहे हो. जैसे यू कैन बी अ रेगुलर पर्सन लाइक एवरीवन. वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ मैजिक. जब आप वर्ल्ड ऑफ मैजिक में होते हैं, यू कैन थिंक रेगुलर एंड यू कैन नॉट बी रेगुलर पर्सन. ओके, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ग्रेटफुल के अलावा ये सारी चीज भी जरूरी होती है. जैसे अगर मुझे कोई किताब लिखना होता है, वेबिनार लिखना होता है, मैं कितनी मूवीज और कितने पॉडकास्ट उससे रिलेटेड सुनती हूँ. जैसे कल मैंने वीगनिज्म का लिया था. इट वाज कॉल्ड वीगनिज्म एंड इट वाज अ पेड वेबिनार एंड एवरी पर्सन हैड पेड 1000 rupees plus GST to listen to just my 2 hours. So I watched the Game Changers movie again. I watched You Are What You Eat on Netflix. I studied the latest researches that have come, जो veganism के जो effects होते हैं, कौन कौन सी comorbidities और medical ailments. तो कल इतना सारा रिसर्च करके फिर मैंने वो veganism का वेबिनार लिया था. ऐसे तो नहीं लिया था मैं, मुझे तो वैसे ज्ञान था ही. I have taken it before. 3 साल पहले भी मैंने लिया था. पीपीटी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, बट मैं लास्ट मोमेंट तक अपनी पीपीटी अपडेट कर रही थी, मैं स्टडी कर रही थी एंड डीप डाइविंग, ऑफिस का भी बाकी का काम साथ साथ कर रही थी. सो इट वाज लाइक सो इट वाज नॉट दैट कि ठीक है निपटा दो टाइप्स. इट वाज नॉट दैट ठीक है मुझे वीगनिज्म का मुझे बहुत आता है, लाइक राइट नाउ आई कैन राइट अ बुक ऑन वीगनिज्म, बट आई वांटेड टू गिव द बेस्ट, टेक माय स्किल टू बियॉन्ड टू द वाइल्डेस्ट एंड वाइल्डेस्ट ऑफ द एजेस, जो टॉम रॉबिन्स ने शुरू में लिखा हुआ है. And that is how you reach that state. So like someone up there was watching for all the efforts that I was doing. कहीं कोई इनविजिबल फोर्स जो हमेशा हमारे साथ होता है ना, एज अबव सो बिलो, एज विद इन एज सो विदाउट. सो वो जो फोर्स है जो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, जो हमारे इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है आज कि मतलब कल उसने देखा ना मैंने कितनी ज्यादा अपने उसके लिए, बिकॉज आई रियली वांटेड टू गिव इट द बेस्ट शॉट. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. एंड सो आज की प्रैक्टिस, सो आई विल नॉट स्ट्रेच इट वेरी लॉन्ग, आई ऑल्सो हैव टू गो. सो आज की प्रैक्टिस में आपको ये इमेजिन करना है कि कोई एक अदृश्य मैनेजर है, इनविजिबल मैनेजर, जो आपके साथ साथ एक नोटबुक और पेन लेके चल रहा है. उसके पास एक मोटा सा जर्नल है, मोटा सा, ठीक है, और वो खाली है अभी, और वो पेन लेके चल रहा है और उसका जर्नल आज हमको फिल करवाना है. तो जैसे ही आप बोलोगे आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सैलरी और फॉर एवरी मनी दैट आई रिसीव, ओके, वो इमिडिएटली अपनी डायरी में लिख लेगा. अदृश्य रूप में ही लिखेगा, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो लिख रहा है साथ साथ.
ठीक है, फिर उसके बाद आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस, यू नो, लाइक आई लिव लग्जूरियसली बिकॉज ऑफ दैट. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई लैपटॉप. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई चार्जर. आई एम सो grateful to the laptop bag that I have got from my office. I'm so grateful that my phone bill goes to the office every month and it gets paid. I'm so grateful for all the travels that I have done. I'm so grateful to my workstation, my desk, my office where I sit and work so comfortably. I'm so grateful to the beautiful office because you can have a beautiful view through the window. I'm so grateful to the huge washrooms which are there, you know, which are always equipped with the appropriate tissue papers and toilet rolls and hand wash and, you know, like all the other things. You know, there is also a, what do you call, jo diffuser type wo jo hota hai aroma ke liye. So such nice aroma, you know, like coming in the washrooms every time. I'm so grateful. I'm so grateful to the water supply system in the office because I'm always washing the hands or using the washroom. I'm so grateful, you know, to the tag board that I have where I can just put in all the lovely love letters that you all have given. वो वहाँ पे displayed होते हैं, तो मेरे हमेशा मेरे सामने होते हैं. So they are literally love letters, yeah. Although there are so many others who can see them, but then I don't care. For me, they are my prized possessions. So like that. So हर चीज के लिए, you know, office boys जो जाते ही मेरे लिए वो काढ़ा लेके आते हैं. I have that अदरक का पानी the moment I go. Sometimes I love to have a strong cup of coffee. I immediately, मैं बोलती हूँ उसके 5 मिनट में वो आ जाती है. ठीक है, पानी बिफोर आई गो मेरी डेस्क पे बॉटल और ग्लास और, you know, 2-3 बॉटल्स और ग्लास, क्योंकि मैं पानी बहुत पीती हूँ, वो पहले से ही रखा हुआ होता है. सफाइयाँ इतनी बढ़िया that you can actually see your face in the mirror, you know, it's so it is like that. So आज हमको यही अदृश्य मैनेजर को हमको पूरे दिन ये लिखवाना है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, सुबह से लेके शाम तक. ठीक है, बस यही करना है आज की प्रैक्टिस में. और मन में सोचना है, ऑब्वियसली बोलना आउट लाउड नहीं है, मन में सोचना है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वॉशरूम, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वाटर सप्लाई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल. जितना ज्यादा सोच सकते हो वर्क डोमेन का, और उस इनविजिबल मैनेजर जो अदृश्य इंसान, उसकी डायरी भरवा दो. तो आज की प्रैक्टिस में यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. And well, it is giving me one experience after the other, you know, like a work area में something unprecedented, something things that हमने सोचा भी नहीं था. ठीक है, इस तरह से. सो ये प्रैक्टिस आज की पूरे दिन करके हमको करनी है. और मॉर्निंग में ऑफ कोर्स हमारा काउंट माय ब्लेसिंग्स है, जिसमें हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. आज मैंने अपने विजन के लिए लिखा है 10 ब्लेसिंग्स, और मुझे इतना मजा आया, छोटी छोटी चीज निकाल निकाल के विजन के लिए लिखी है. Or vision and eyes, you know, that was my topic for today. So I just like I have a topic for today like that. So it was so much fun deep diving into, you know, what vision can do to us and how wonderful it has been, how I can drive because of the vision, how my travels get so much of meaning because of my vision. I can read from here and kind of talk because of my vision. इस तरह से. तो count my blessings रोज जो आपकी जिंदगी में अभी है, हमको वो लिखना है, रीड करना है, और 3 बार थैंक यू बोलना है. ठीक है, और उसके अलावा रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिसेस, होल्ड दैट रॉक इन योर हैंड, be thankful for small things that has happened during the day, and then go to sleep. So this is about the practice. और दिन भर में हमको मन में ला ला के थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, ये हमको करना है, सारा वर्क डोमेन से रिलेटेड. ठीक है, अब मैं आपको होस्ट बना देती हूँ. श्रेया, हाँ जी, कमिंग. Yes, ma'am. Yeah. It's All you right. only. Thank you. And I'm Alright. connecting through my Yes. phone. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this lovely lesson. It's always pleasure to know about the work, because work, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही actually पूजा है. So let me share the screen of the telepsychics. Yes. So today we are on the finishing chapter of this 12th chapter. We are studying about, this chapter is about surrendering to the universe, having faith on the universe. We have to be one with the universe. हमको पता है कि when, like, obviously this book is Telepsychics, written by Dr. Joseph Murphy. Dr. Joseph Murphy ने कितने अच्छे तरह से उन्होंने बताया है कि how we have to be one with the universe. अगर मैं सोच रही हूँ, so this is like God का decision ऐसा ही होगा जो मैं सोच रही हूँ, है ना? इस तरह से सोचना है. We have to make it a spontaneous effort. Surrendering is something कि अगर आप, जैसे मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए हैं हम लोग, तो मूवी में इमोशनल सीन्स आते हैं, बहुत इमोशनल सीन्स आते हैं. तो इमोशनल सीन्स के लिए हम लोगों को आंखों में ग्लिसरीन लगाकर रोने की जरूरत नहीं पड़ती. अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो आंखों में से आंसू आता है. या कॉमेडी सीन कोई आ गया तो हम लोगों को बहुत भरपूर हंसी आती है.
That is something because we are getting one with. हमको हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसको तो पता है कि ये तो झूठ है, उनको तो हमें तो पता है कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर्स हैं, कोई भी प्ले कर रहा है वो एक्टर्स है, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे वो कुछ किसी भी तरह का एक्ट कोई कर रहा हो, हमें पता होता है कि वो तो एक्टर है। लेकिन फिर भी हमारे सब हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग हंसना चालू हो जाते हैं बिकॉज वी आर बिलीविंग दैट दैट पर्सन इज डूइंग दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। किसी के साथ कोई मूवी में मिसहैप हो जाता है तो हमको लगता है कि यार मतलब हम रोने इसलिए शुरू कर जाते हैं ना बिकॉज वी आर थिंकिंग बट दैट इज हैपनिंग रियल, दैट्स अ रियल थिंग, that is why we get emotional na, while watching the things. So the same way we have to have this kind of belief upon the universe कि हमने जो डिजायर फ्लोट की है या हमने जो रात को क्वेश्चन पूछा है, कितना भी टाइम लगे हमारा आंसर तो आएगा ही। and we have to be in that particular frequency with the universe because ultimately we are one with the universe और हम तो एक ही हैं, हम लोग जितने भी persons हैं यहाँ पर एक्चुअली हम लोग सारे एक हैं। तो when we start believing on this thing, that particular thing is surrendering कि आपको बिलीव है कि होगा, मैंने अगर बोला है कि मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए तो होगा, होगा ही होगा वो वाला जो बिलीफ आना ना वो इम्पोर्टेंट है। जिस दिन हम लोगों को वो वाला बिलीफ आ गया, वो वाला फेथ हमारे अंदर से निकल के बाहर आके हमको पूरी तरह फेथ हो गया कि नहीं हम लोगों ने डिजायर किया वो तो होगा ही, तो वो वाला जो फेथ है ना वो हमको सरेंडर करने का जो वो है ना सरेंडर करने की जो केपेबिलिटी है, ये क्षमता जो है ना तब आती है हमारे अंदर। वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। हमारा कोई भी डिजायर है, कुछ भी है, इफ इट इज गेटिंग लाइक टेकिंग सो मच टाइम टू फुलफिल, देन ऑल्सो हम लोगों को सोचना पड़ेगा टाइम लग रहा है लेकिन वो तो हो ही चुका है, बस एक्चुअल में आने की जरूरत है ना उसको, उतना ही तो है। तो वी हैव टू बी एंड फ्लोट इन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू रेजोनेट इन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम लोग बर्तन में चम्मच को मारेंगे तो आवाज आती है ना, आवाज आती है बहुत देर तक, वो ऐसी आवाज आती जाएगी, तो वो रेजोनेंस होता है। वो उसी तरीके से हम लोग जब यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करेंगे ना उसी फ्रिक्वेंसी में, तब हमारे जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होंगे बिल्कुल अच्छे से। उसके लिए हम लोगों को किसी भी बाहरी ताकत में यकीन करने की या अपने आप को उस चीज में करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज बिटवीन अस एंड द यूनिवर्स। और वो यूनिवर्स कहाँ है, इट्स ऑल विद इन अस ओनली, हमारे आजू बाजू में, हर एक पत्ते पत्ते में, हर एक बूटे में और हमारे अंदर, वही सब है, वही यूनिवर्स है। तो जब भी कोई ये चैप्टर इसी को लेकर है ना कि वी हैव टू हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स, कोई भी चीज हो हमको फेथ करना है। जिस तरह से कितने बड़े बड़े यहाँ पर एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है हम लोगों को, लेकिन वो भी हुआ है और ये सब रियल एक्सपीरियंसेस हैं। सो इसको हम लोगों ने पढ़ा 7th वाले पॉइंट तक। अभी मिस्टर साई प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर विल बी रीडिंग फॉर अस। So yes, sir, you can start reading for them from the 8th point. Okay. Good morning, everyone. Thanks for giving me this occasion to read it. Point 8. Sure, sir. Please go. Action and reaction are cosmic and universal. When you come to a clear-cut, definite, conscious mind decision, there will be an automatic response from your subconscious in accordance with the nature of your decision. Often, point 9, often the answer from your subconscious comes in the form of an inner feeling of certitude, a predominant hunch, or a spontaneous idea that wells up from your subliminal mind. Sometimes, point 10, sometimes in the presence of a great emergency, crisis, or shock, man forgets his crippled or paralyzed state in order to save the lives of loved ones. When a tornado warning was given, one man, completely paralyzed, had an intense decision to save his grandchildren. He walked into the room, grabbed them to take them down into the cellar. All the power of the infinite flowed to his focal point of attention. He came to the decision that he could carry out his desire. The power of the infinite responded. Point 11. When a person says, just a moment, sir, we'll discuss this chapter. Sir, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर जाते हैं आगे। Yes, sir. So यहाँ पर हम लोगों को सबको पता ही है, we are studying law of attraction here, और law of attraction, everything
is about the law of cause and effect. जैसी करनी वैसा भरनी, जैसा बीज बोएंगे वही वाला पेड़ उगेगा. So law of cause and effect works in each and every realm of our life. कोई भी एट्रीब्यूट ले लो लाइफ का, चाहे वो वर्क डोमेन हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो पैसा हो, एवरीथिंग में आपने जो एनर्जी दी है वही आपको मिलेगा. दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. जिस तरह से सूरज जो है हमेशा ईस्ट से ही, लाइक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सो वी ऑल नो दैट एंड दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. हम सभी को पता है ये, कभी भी सूरज जो है वेस्ट से नहीं उगेगा, राइट? सो उसी तरह से ग्रेविटेशन का जो लॉ है, हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आएंगी. दैट्स अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सेम वे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये आपके लाइफ के हर एक रेल्म पे काम करता है. सो कोई भी काम करने से पहले वी नीड टू थिंक अपॉन दिस कि व्हाट वी आर डूइंग. क्या हमारा ये एक्ट जो है वो ठीक है? ये क्या मैं जो भी काम कर रही हूँ वो क्या वो ठीक है? कॉन्शियस माइंड से जब हम लोग सोचेंगे एंड कॉन्शियस माइंड से जब हम वही वाले काम करेंगे जो कि बिल्कुल हम लोगों को लगेगा कि हाँ दिस इज ओके, दिस इज द वे टू गो ऑन. तो जब हमको ये लगेगा ना, तो दैट कॉन्शियस माइंड से जब हम लोग सोचेंगे वही तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा ना. So we have to filter our thoughts and we have to filter our abilities. कभी भी किसी काम को करने से पहले अगर we think कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा. सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया? नहीं गया. तो आगे जाकर जब हमें कभी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, just suppose you are in a point in your life then when you have to take a decision, तो वो डिसीजन कहाँ से आएगा? अगर स्पॉन्टेनियसली आएगा ना वो, क्योंकि आपने अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी सोच रहे हो वो आपके फिल्टर होके सारे के सारे थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं. तो यूनिवर्स के वहां से, सबकॉन्शियस माइंड के वहां से कहाँ से वो सारे विचार आते हैं? वो विजडम कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है कि when we filter out our thoughts, when we stay in the positive zone, when we have this positive affirmation that we invoke into us, है ना? हम positive affirmations बोलते हैं, हम hetero suggestions देते हैं. So all those things filter out the negative part of the whole thing, right? And only the positive things gets into the subconscious mind. मतलब we have to build that area. तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा एवरी एक्शन जो है हमारा, इट विल कम बैक टू अस. वो आएगा ही आएगा. इट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो वी हैव टू be like that. If you want to make a change in a particular person, you have to be that person. If you want to have a Mercedes, then you have to feel that I have a Mercedes. How will I react that time? अगर आपके पास मर्सिडीज है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा फ्यूल एफिशिएंसी कितना होगा. मर्सिडीज वाले ये नहीं सोचते हैं ना कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरी, या कितना कितना देगी, कितना चलेगी. वो नहीं आएंगे. तो वी हैव टू बिल्ड दैट माइंडसेट. माइंडसेट इज एवरीथिंग. कभी भी किसी भी पोजीशन में माइंडसेट एवरीथिंग है. तो जब हम अपना माइंडसेट वैसा रखेंगे तो एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू अस. यही तो है ना टेलीसाइकिक्स, कि किस तरह से आप सबकॉन्शियस माइंड के जो पावर को यूटिलाइज कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करके यूटिलाइज कर रहे हो. सो दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग एंड दैट इज यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. कोई भी हो हम यहाँ पर. दीप्ति मैम आज अभी इससे पहले हमारा सेशन इतने अच्छे तरह से लिया उन्होंने बताया कि she has reached a particular, like she is an epitome of success amongst us. मैं देखती हूँ उनको जिस तरह से. तो उनमें और हम में यही फर्क है कि हम लोग शायद अपने थॉट्स पर या अपने काम पर उतना ज्यादा काबू नहीं रख पाए हैं अभी भी, जो कि हमें रखना चाहिए. हो सकता है हमने अपने वर्क डोमेन के लिए लिखा हो, सोचा हो, लेकिन किया ना हो. ऑफिस में बैठकर हो सकता है आज भी हम लोग गेम खेलते हो या फ्रेंड से बात करते हो फ्री टाइम पे. हो सकता है ऐसा करते हो हम लोग, जो कि वो नहीं करती हैं, राइट? तो वी हैव टू चेंज आवर कंडक्ट, हाउ वी विजुअलाइज आवर थिंग. हम कैसे अपने आप को, एक अच्छा कंडक्ट कैसा होगा? जैसे कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ या कभी मैम भी बोल रहे होते हैं जब, सो कैसा होगा? आप अपने आप को रखकर देखो कि आप सामने बैठे हुए हो, यू आर इन फ्रंट एंड यू आर लाइक आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वेबिनार को आप हेड कर रहे हो और आपके सामने लोग बातें कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये ऐसे करके ही, अगर आपका अपना वर्क ऑर्गेनाइजेशन हो, if you are a business owner and many people are working under you, just imagine how would you feel then when you watch the people that वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या ये वो कर रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? The same way you should act also. As an employee, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एम्प्लॉय क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरह से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को एपिटोमी में लेकर जा सकूं. What is my responsibility?
then only those things will happen to us. Na, that is paying gratitude to your work to that extent, right? So ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा always always, because law of cause and action जो है वो universal and cosmic truth है, वो तो होगा ही होगा. देन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, वो हम लोगों को सबको पता है क्या है, लेकिन शायद हम लोग उसको इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्पॉन्टेनियसली उस पर्टिकुलर पोजीशन में जा ही नहीं पाते हैं. तो इसीलिए in order to use that innate power of your subconscious mind, we have to think in that way. जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि यूनिवर्स अगर मेरे जगह में दीप्ति मैम होती, जैसे सपोज कि वो क्या करती, क्या वो अपने वर्क के लिए या अपने फैमिली के लिए कैसे करती, या वो अपने आप के लिए कैसे करती, वो चीज तो हम लोगों को हमेशा फिल्टर आउट करना पड़ेगा. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना कॉन्शियसली तो सोचता नहीं है ना, उसको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So whatever we are sending, it is receiving that particular signal filter होके, और उसकी उपासना पता नहीं कितने टेराबाइट्स की मेमोरी है, इतने टेराबाइट से भी ज्यादा की मेमोरी है. द मेमोरी दैट इज इट इज कैरिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस या प्रीवियस थिंग्स, हमारे जो प्रीवियस जन्मास हुए हैं वहां से वो वाली चीजें सारी कैरी होकर आ रही हैं. एंड नाउ एज वी ऑल आर स्टडिंग दिस बुक्स, so we know that how to rewire our brain, how to rewire our brain and to get in order to get the maximum benefit out of it, right? तो ये हम लोगों को पता है, and we are always dwelling in this, that how to feed good and best things to our subconscious mind. जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड का हम लोगों को आजकल पता है कि क्या होता है, उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का खाना जो है, वो फ्यूल जो है, वो क्या है, हमारे पॉजिटिव वर्ड्स, हमारे पॉजिटिव थॉट्स और हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स. खाली हम लोग अगर लिखें हमारे ग्रैटिट्यूड हमारे जर्नल में कि हमने अपने वर्क के लिए लिखा, अपने पेरेंट्स के लिए लिखा, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में पेरेंट्स के लिए यही आता रहे कि पेरेंट्स ने देखो वो करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया, या उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं किया. सो ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन डजंट कोएग्जिस्ट, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट. सो वी हैव टू डिसाइड आवर पाथ एंड वी जस्ट हैव टू फिल्टर आवर माइंड so that only good things go into the subconscious mind. And when you have that power कि आपको पता है कि subconscious mind मेरा भी उतना ही powerful है जितना कि मुकेश अंबानी का है, that is the time when you'll catch the stars. आपको पता होगा उसी टाइम आप spontaneously act करके, अपने spontaneously act करके अपने subconscious mind की power को अपनी life में खींच कर ला सकते हो. So this is the thing. So now we have studied about that particular experience कि जहां पर एक पर्सन को पैरालिसिस था, he was having that paralytic effect और बहुत टाइम से उनको पैरालिसिस था, फिर भी how he saved his grandchildren. उनके आग लग गई थी और वो अपने जो है ना नीचे उन्होंने बना रखा होता है तय खाना टाइप, सेलार बोलते हैं जिसको, वहां पर उन बच्चों को लेके गए, although he was completely paralyzed. तो किस तरह से he focused on the power, उसकी थॉट में इतने इमोशंस थे कि उन्होंने वो कर दिखाया, उन्होंने वो किया, एंड ही सेव बोथ लाइक बच्चों का भी और अपना लाइफ भी उन्होंने सेव किया. इसी तरीके से एक और स्टोरी ना मेरे पास भी आई थी, बहुत पहले सुनी थी, अभी तो ये बुक पढ़ रही हूँ, उससे पहले ही ना एक आया था कि उसमें ना एक लेडी थी. सो दैट लेडी वाज माइट बी 70 years old और समथिंग. तो वो ना घर पे अकेली थी और वो लाइक शी यूज्ड टू स्टे विद हर किड्स, अपने बहू और बेटों के साथ रहती थी वो. तो वो जो बहू बेटे वो घर पे नहीं थे, और उस दिन ना पता नहीं कैसा हुआ, बहुत ही ऐसा सिचुएशन हुआ कि फ्लड आ गया या कुछ इस तरह का कंडीशन हो गया, पता इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, क्या हुआ था आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत पहले सुना था. एंड दैट लेडी वाज कंप्लीटली क्रिपल्ड. वो अपने आप को अपने आप बचा कर गई, मतलब उनके, मुझे लगता है कि उन्होंने उनकी जो बच्चों है ना उन्होंने प्लॉट कर रखा था सो दैट शी सरेंडर्स एंड ऑल, बट शी डिड नॉट सरेंडर. वो अपना ग्लास भी नहीं उठा पाती थी अपने हाथों से, वो लेडी बचकर अपने गेट से बाहर निकली है. सो दैट टाइम शी न्यू कि हाँ मेरे पैर कदम चल रहे हैं. उसके बाद शी डिड नॉट कम बैक टू हर किड्स, क्योंकि उनको पता था कि किड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, और ये सब कुछ करके तो वो बाहर चलेगी, अपने फ्रेंड के पास चलेगी, ओल्ड एज होम में चलेगी, वहां पर वो जाकर रहने लग पड़ी. तो ये था. तो ऐसा होता है, we have to believe in these powers because they do exist in this universe. यही तो मिरेकल है. हम लोगों को लगता है ना मैजिक एंड मिरेकल, यही तो मिरेकल है कि किस तरह से एक क्रिपल्ड इंसान ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने पोतियों की भी जान बचाई उन्होंने. बिकॉज आप एक तो आप खुद चल रहे हो, ऊपर से आप दूसरे तरह से यू आर कैरिंग 2 kids और आप उनको भी बचा रहे हो, तो कितना ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है एक पैरालिटिक इंसान के लिए. So it was also done with the help of the power of the subconscious mind.
तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर. Yes, the 11th one. Point 11. When a person says, I will let God decide, he usually means a God outside himself. However, you are an active decision-making being. You are here to make your own decisions. The universe will do nothing to you or for you, only through you. That is, through your thoughts, imagery, and beliefs. You must make choices. Then the infinite intelligence of your subconscious mind will respond. Accept your own divinity. If you refuse, you are rejecting the wisdom and intelligence of the infinite within you. Dr. Emmett Fox decided to go to America to speak to thousands. He adhered to that decision. All doors opened up. In a matter of a few years after that decision, he found himself in New York City, where he addressed thousands in accordance with his decision. Yes. So 11th point में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि we have to take charge of our life. हम लोगों को अपने लाइफ का चार्ज अपने आप लेना पड़ेगा. There is no other force outside our body. हम लोगों को ये नहीं सोचना होता है कि वहां पर जाएंगे, वहां पर जाने के कारण मेरी मन्नतें पूरी होंगी. तो वो अगर हम वहां पर गए हैं और हमारी मन्नतें पूरी हुई हैं, बी इट अ मस्जिद, बी इट अ मंदिर, एनीवेयर, हमको लगता है कि वहां पर मैंने ये किया है इसलिए मेरी मन्नतें पूरी हुई है, वो एक्चुअली नहीं होता. दैट एक्ट्स एज अ प्लेसिबो इफेक्ट. आपको अंदर वो एक ऐसा आपको लगता है कि वो होगा. दैट कम्स लाइक वो आपके कॉन्शियस माइंड से जब आपकी साइकी ऐसी हो जाती है ना, यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तब वो आपके लिए होता है. अब जस्ट सपोज कि आपको पता है कि भगवान की पावर है हमारे पास, और भगवान की पावर से मैं आज खाना भी बहुत अच्छा बना लूंगी. जस्ट सपोज कि आई वांट टू मेक अ गाजर का हलवा एंड आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गैस, और मैं गैस स्टोव के सामने आके बनाऊंगी. तो बनाना तो वो मुझे पड़ेगा ना, भगवान आकर वो बना तो नहीं देंगे ना. तो करना किसको पड़ रहा है? मुझे करना पड़ेगा. तो द सेम वे कोई भी काम है, छोटे से छोटा काम को लेके, चाहे वो आपने कुछ सिलाई करना हो से लेकर आपने हवाई जहाज उड़ाना हो, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज यू आर डूइंग इट, बिकॉज यू आर द पावर दैट इज डूइंग इट. Okay, it's always, it's understandable that we have a belief system. We are carrying that belief system from our childhood only. Everything is there, I know. But now is the time that we take charge of our life and we have to believe that no power exists like outside our body. It's all within us. We just not have to be a victim. Victim नहीं बनना है हमको. किसी भी circumstance का victim नहीं बनना है हमको victorious बनना है किसी भी circumstances का. Whatever the circumstance come, be it positive, be it negative, we have to come out victorious in each and every circumstances, not play the victim card always. We have to be an active doer. एक्टिवली काम करना है हमने अपने लाइफ के लिए, पैसिवली नहीं कि हम लोग प्रे करते रहेंगे, प्रे कर रहे हैं भगवान ये हो जाए मैं आपको 1 किलो या 50 किलो लड्डू सवा मनी आके चढ़ाऊंगा. नहीं, वो नहीं. यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. गॉड अगर आपके लिए कर रहा है ना, हम लोग बचपन में सुनते थे ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो गॉड एक्चुअली इज अस ओनली ना. हमारे कंडक्ट हमें गॉड बनाते हैं. जैसे हमने रामायण में भी देखा है कि श्री राम हुए थे, रावण हुए थे. वो श्री राम और रावण कौन है? वो हमारे अंदर ही हैं. वो हम ही हैं एक्चुअली. जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटीज है, वो सारे गुड वाली जो चीजें हैं वो राम है. और जो हमारे अंदर कोई अगर नेगेटिव चीज है, वो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है वो रावण की तरह है. सो नाउ यू हैव टू फील कि आप के अंदर आप किसको रखना चाहते हो, राम क्या है, या आप किसको अंदर आप किसको कौन सी पर्टिकुलर चीज अपने अंदर रखना चाहते हो. क्या आप विक्टिम माइंडसेट के साथ रहोगे? नहीं रहेंगे हम लोग. वी विल बी विक्टोरियस इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ. हर किसी सर्कमस्टांस को हमने ऐसे करना है कि व्हाट लाइक कैसा किया होता, या आपका कोई भी आइडल होता है ना, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आइडल होता है. तो आप जब उनको मानते हो कि लाइक मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, अगर मैं अपने वर्क प्लेस में ट्रैफिक में अगर मैं हूँ, और ट्रैफिक में आपने पार्किंग में अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी की है कि आपने पार्क, कई बार ऐसा होता है ना कि भी हम लोग कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि हाँ भाई मेरे शॉप के पास ही, उस पर्टिकुलर शॉप के पास या उस पर्टिकुलर मॉल के सामने मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करके उसके सामने खड़ी कर दिया, और उसके कारण द होल ट्रैफिक इज गेट्स ब्लॉक्ड समटाइम्स. आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस.
सो दैट टाइम आपको ये सोचना है कि मैं हूं, लाइक आई एम कमिंग, किसी और ने ये गाड़ी पार्क कर दी है तो मुझे कैसा लगेगा, है ना? इतना सा तो हम चलकर जा सकते हैं. वी कैन पार्क आवर कार प्रॉपरली इन अ पार्किंग इंस्टेड ऑफ पार्किंग इट एनीवेयर, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ वॉक ना. जो भी पर्सन जा रहा होगा, कहीं इमरजेंसी में भी जा रहा होगा, कुछ इमरजेंसी में चीज खरीदने आ रहा होगा, उसको भी तो कितना प्रॉब्लम होगा. एंड बिकॉज ऑफ यू द होल ट्रैफिक गेट्स स्टक. So every time, always have this in your mind कि we are like keep yourself in the shoes of others, कि others अगर ऐसा behave करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, right? So this is the thing. So always be an active player in your life. Be on the driving seat of our car always, because that way you will be, you know, steering the way. Like you will be steering your life the way you want it to be. जहां पर भी आप लेकर जाना चाहो, आपकी जिंदगी है, आपकी गाड़ी है, आप लेकर जा सकते हो. किसी और चीज में ये डिपेंड नहीं करती, आपके ऊपर डिपेंड करती है. डॉक्टर जोसेफ मर्फी 11th नंबर पॉइंट में ये कर रहे हैं. एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंग, जब डॉक्टर एमेट फॉक्स थे, उनका वो मतलब ही हैड दिस डिजायर दैट ही वांटेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. अब आपका कोई भी लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में हो सकता है, आपको हो सकता है यू आर एन इंजीनियर नाउ, बट आपको फाइनेंसिस का मतलब मैथमेटिक्स आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको नंबर्स के साथ बहुत प्यार है. यू आर लाइक, आपको लगता है ना कि बहुत अच्छे तरह से मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, मैं समझ पाता हूँ. हो सकता है आपको हमारी जो इंडिया की या वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट हो, तो क्या कर सकते हो आप उसके साथ साथ आप अपने इस वाले पर्टिकुलर जो पैशन है, समथिंग अबाउट यू आर पैशनेट अबाउट, उसको भी तो होन कर सकते हो ना. सो इट्स दैट कि if you are an engineer and you are thinking to build a career in the commerce sector, then also you can do that anywhere. If you are a housewife, you are not working since last 20 years, still you can do that. You can work. आप घर से शुरू कर सकते हो. हमारी जो अर्चना गुप्ता मैम है, उन्होंने तो ऐसे ही शुरू किया था. उन्होंने अपना काम जो है अपने आप से, मतलब शी wasn't working for 60 long years of her life. 60 साल की उम्र में उन्होंने छोटे से लेकर काम करना शुरू किया. एंड आई रिमेम्बर द extent of her happiness when she shared with us कि मैंने 10,000 रुपीज कमाए, मतलब 10,000 रुपीज मेरे, और वो 10,000 रुपीज ना उनके हस्बैंड और उनके पूरी की पूरी फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है, दे आर वेरी वेल ऑफ पीपल. बट सिंस दैट 10,000 was earned by her, she got so much happiness that she came out of the box in that particular stage of her life when her kids are working in a very she belongs to a very affluent family. तो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से काम, लेकिन उन्होंने किया 60 साल की उम्र में. हम लोग तो वही सोच लेते हैं कि हमारे तो उम्र आ गई है, हमको तो अभी क्या करना है, क्या बचा है जिंदगी में. नहीं, कभी भी नहीं. आपकी लाइफ किसी भी मोड़ पर हो, कहीं पर भी हो, एनी टाइम एंड एवरी टाइम यू कैन टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. कोई भी, आपको डांस भी सीखने का मन करे ना, 60 ईयर्स के हो और आपको डांस सीखने का मन करे, 70 ईयर्स के हो, डांस का मन करे, बिल्कुल बिंदास सीखो. लुईज हैं, उन्होंने 75 ऑफ इयर्स की एज में उन्होंने पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में सीखी थी उन्होंने, है ना, और सालसा उन्होंने 75 इयर्स की एज में सीखा था. ऐसे करके हमारे ब्रेन को ना काम दो. जितना हम लोग अपने लैंग्वेजेस, मान लीजिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का शौक है या जर्मन सीखने का शौक है, कुछ भी है, आप करो, कोशिश करो, हमेशा कोशिश करते रहने. तो इससे क्या होगा ना, हमारा ब्रेन भी जो एक्टिव होता रहता है, हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. जैसे हम लोग मसल्स उठाकर हम लोग अपने हाथों की बाइसेप्स बनाते हैं, या वी वर्क ऑन लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से नई नई चीजों को करके, टू डू थिंग्स डिफरेंटली, वी डू द एक्सरसाइज फॉर आवर ब्रेन. जितना ज्यादा हमारा ब्रेन एफिशिएंटली एक्सरसाइज करेगा, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे लाइफ में आती जाएंगी, और हम लोग जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से तो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो मेनी एक्सपीरियंसेस आर देयर, सो मेनी आर येट टू कम इन दिस चैप्टर. सो आप ये देखिए, ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, मतलब अभी हमारा कंक्लूड हो गया, लेकिन अगले चैप्टर में भी हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखेंगे. हमको रियल लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिखते हैं, जो कि मैंने आपको वो स्टोरी बताई ना, वो एल्डरली वुमेन की जो कि क्रिपल थी और वो चलकर अपने आप को उन्हें बचाया. वो न्यूज में आया था वो स्टोरी. हमारे मुझे लगता है 7-8 साल 10 साल पुरानी स्टोरी होगी, हो सकता है वो वाली. तो इट एक्चुअली हैपेंस. ये जो बातें हैं, ये तो सर ने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत पुरानी बुक लिखी हुई है, ये काफी पुरानी. साइकोलॉजिस्ट भी इस पर्टिकुलर बुक को रेफर करते हैं, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, या डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक्स. आप देखोगे ना, इसमें ज्यादातर हेल्थ रिलेटेड है, अभी तक तो हमने जो पढ़े हैं. सो पीपल फॉलो दीज थिंग्स. डॉक्टर भी आके बोलते हैं कि अब हमारा काम तो हो गया, अब भगवान के ऊपर है.
तो वो भगवान कौन है? वो भगवान आपके अंदर ही है। अपने अंदर जो विल पावर होती है ना, उससे हम लोग पता ही नहीं क्या क्या कर सकते हैं। और वो विल पावर कहाँ से आती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है वो। तो उसको होन करने का मतलब है हम लोग शांति से उसको समझें, कोशिश करें साइलेंस में रह के हम लोग अपने पावर्स को, है ना, फोकस कर सकते हैं। जितने ज्यादा हम लोग अपने पावर पे फोकस करेंगे, उतने ज्यादा हम लोग अपने पावर को एनहांस करेंगे। एनर्जी फ्लोज where attention goes. So always try and keep your energy focused into the positive things of your life. And for that, we all are here. We all are conducting these chapters. We are all learning and reading together. So these things, these are like keeping us in a particular line where we are all lined to make our future bright. हमारे साथ साथ हमारे पास ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोग इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए हैं कि वॉट एवर वी नो विल बी स्प्रेडिंग दैट, है ना। उसको स्प्रेड करना, उसको और लोगों को अवेयर करना, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम सभी की है। तो वो हम कर रहे हैं। So this is the way to live our life. We just have to have this particular faith upon our subconscious mind, upon the studies that we are doing, upon the law of attraction, everything. So tabhi our goals will get manifested within no time. So thank you so much, Sai Prasad sir, for reading so beautifully for us. And tomorrow we'll be starting the new chapter. So let's Thank you very conclude much. the session here. Thank you very Thank much. you so much, sir. Bye. प्रिया आप म्यूट हो गए, प्रिया आप म्यूट हो गए। यस, अब ठीक है। So yes, ma'am, if you want to add, then you can please. अगर आप ऐड करना चाहें, या पूनम मैम आप ऐड करना चाहें, या कोई भी बहुत ही एमिनेंट पीपल हो आप लोग, कोई भी अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज डू दैट। Else we are taking Priyanka's sharing. ठीक है प्रियंका, आप बोलो। Yes, Priyanka. Morning, everyone. Good morning, Deepti ma'am. Good morning, Priya. And Deepti ma'am is like source of motivation, inspiration for me always. जब से मैंने डाइटिशियन का कोर्स ज्वाइन किया है, जब से ही वो हैं। एंड मतलब लाइफ इतनी इजी, इतनी मजेदार, इतनी लग्जूरियस शायद उनके कारण है। ऑल्दो लाइफ में कभी कुछ खास चैलेंजेस रहे नहीं। सो आई होप दीप्ति मैम यू आर लिसनिंग टू मी। आई वांट टू जस्ट मतलब Absolutely, all ears listening with a very, very loud sound on my phone. And I was looking forward to listening to your experience. थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम एज यू हैव टोल्ड कि विजन बोर्ड बनाना चाहिए, सो हमारे दुबई ट्रिप के लिए मैंने पहले ही करीब 2 महीने पहले मैंने अपना विजन बोर्ड, जिस दिन हमारी टिकट्स बुक हुई थी उसी दिन मैंने अपना विजन बोर्ड पूरा तैयार कर लिया था विद ऑल द प्लेसेस जो आइटनरी में मेंशन थे, ऑल दैट। 555 प्रैक्टिस मैंने उसके लिए की थी। और उसके साथ साथ मैग्निफिसेंट आउटकम तो हमारा हर इवेंट के लिए हो रहा था, हम जो भी कर रहे थे। जैसे ही हम घर से निकले एयरपोर्ट के लिए, इतने अच्छे से टैक्सी मिल गई, हमारा नया हाईवे शुरू हुआ है, तो 20 मिनट्स के अंदर हम एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां जाके मेरी डॉटर का ईसीआर, बड़े वाली डॉटर का ईसीआर का कोई प्रॉब्लम था, तो दे सेड के पता नहीं होगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा। ऐसे इसमें ऑन बोर्ड के टाइम पे आपने रेडी टू बोर्ड उस पर लिखा होना चाहिए, तो वो उस पे नहीं आ रहा था। देन एज माय चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन थ्रू दिस जर्नी, तो वो अपने आप ही थैंक यू बोलने चले लग गए दोनों तीनों कि हमारा काम हो गया। मतलब मेरे को, हस्बैंड को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी उन्होंने बोला नहीं नहीं हो जाएगा, फैमिली ट्रिप में हम ज्यादा कुछ करते नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने 24 से लेके 26 तक अपने स्कूल से लीव सैंक्शन कराई थी फॉर दिस ट्रिप ओनली। और एक हफ्ते पहले ही हमें पता चला कि हमें 23rd के बाद प्रिंसिपल पूरा 1 वीक के लिए पूरा ब्रेक दे रही है। तो मेरे को वो सैंक्शन जो लीव मैंने कराई थी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी 3 दिन की, तो वो मेरे वेकेशन में ही काउंटेड होगी। एंड 24 से एग्जैक्टली हमारा ये शुरू होना था। ऑल्दो मार्च में मेरी एक भी लीव नहीं थी, ऑल सैटरडेज वर वर्किंग, इट वाज अ लिटिल हैक्टिक फॉर मी, बट स्टिल व्हेन वी वेंट टू गोवा, मतलब सॉरी दुबई, और दुबई में जाने के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ 1-2 दिन थोड़ा टायर्डनेस लगी, बट उसके बाद तो इतनी एनर्जी थी। पूरा पूरा दिन हम 20-20 हजार स्टेप्स जा रहे थे। सुबह 7 बजे से उठना, रात को 2 बजे आना, और बच्चे भी इवन सब मिलके बहुत मजेदार हमारा ट्रिप चल रहा था। सो हमने हयात पैलेस बुक किया था
पता नहीं था जुमेरा में कौन सी लोकेशन है, मैंने ऐसे ही अच्छे रिव्यू देख के कर दिया था कि अच्छा जी अच्छे रिव्यूज हैं, ये है वो है हयात पैलेस। बट व्हेन वी रीच देयर तो पता चला दिस वाज द बेस्ट लोकेशन जो हमें बुक करना चाहिए था। एवरीथिंग दुबई फ्रेम सब कुछ बहुत नजदीक नजदीक था, बहुत अच्छा था। जो मेरा बीच बहुत नजदीक था। सो उसके बाद मैम जो हमारे पर्सनल ड्राइवर हमें मिला था, ही वॉज अ वेरी गुड गाय। मतलब बच्चों अब लग ही नहीं रहा था कि वो ड्राइवर है, इतने अच्छे से बच्चों को हमें बहुत सारी चीजें साथ साथ में बताता चल रहा था, हमें नॉलेज भी देता जा रहा था दुबई के बारे में। और मतलब इट वाज फन फील्ड, मजे मस्ती। ड्राइवर के साथ भी हमें ये नहीं लग रहा था, बिल्कुल घर के मेंबर की तरह ही वो हमसे बातें कर रहा था, समझा रहा था बच्चों को या हमें बहुत सारी चीजें नॉलेज भी दे रहा था। एंड आफ्टर दैट मैम सब कुछ तो बहुत बहुत अच्छे से होता रहा। एक्चुअली हमें लग रहा था 6 दिन के ट्रिप में हम 15-20 दिन घूम के आए हैं शायद। तो पिक्चर्स वर अमेजिंग, लग रहा था ओ जैसे कोई सुपरस्टार हम एटलांटिस होटल के सामने खड़े होकर पिक्चर खिंचवा रहे हैं। एंड आई विल शेयर द पिक्स ऑल्सो, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आए हैं। एंड वी ऑल वर लुकिंग वेरी फ्रेश एट एवरी पॉइंट। एंड देन वी वेंट फॉर डेजर्ट सफारी। और डेजर्ट सफारी में आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ के ऊपर नीचे राइड्स एंड ऑल दैट मैं नहीं लेती। बट एक टॉप पॉइंट था मैम जो हमें दूर से लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई जा ही नहीं सकता। सो देयर वर 3-4 कार्स टुगेदर, जिसमें से केवल हमारी कार उस टॉप तक पहुंची और बाकी वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। एंड इट वाज ब्रेथ टेकिंग, मेरी तो हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी कि वो इतनी ऊपर आ गए, हम नीचे कैसे जाएंगे। बट फाइनली जब हमने वो किया मुझे लगा वाओ, मतलब मजा तो इसमें है, करना चाहिए था। क्यों नहीं, मतलब मैं आज तक मैं क्यों सोच रही थी कि क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं, नहीं करना नहीं करना। सो आई डिड इट अमेजिंगली वेल विद माई फैमिली एंड एवरीवन एंजॉयड। मेरे बच्चे तो इतना मजा कर रहे थे, वहां पे भी हमने पिक्चर्स ली, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैम I have written everything actually. There were so many things. So उसके बाद मैम हम गोल्ड सूक गए शॉपिंग के लिए, जहाँ पे हमने पूरा घूमा देखा अच्छे से। वहां पे हमें 0% मेकिंग के साथ द चार्जेस इंडिया के कंपैरेटिवली ऑलरेडी 10-12,000 तो वैसे ही कम है। और चार्जेस मेकिंग चार्जेस वर 0। मतलब वहां से अच्छा सारा मतलब अच्छे से शॉपिंग की, गोल्ड वोल्ड लेके हम वापस आए। उसके बाद हमें सेम डे मिरेकल गार्डन ग्लोबल विलेज जाना था और एक और मतलब शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो हम एमिरेट्स मॉल गए मैम, रात को अप्रोक्सीमेटली 11 o'clock हो गया था वहां पे। तो वहां पे मॉल्स 1 बजे तक तो खुले होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि रमजान के कारण ना ये इतना लोगों ने कम बुकिंग की हुई थी और हमें सब कुछ इतना खुला खुला बढ़िया से देखने को मिला, कहीं क्राउड नहीं था। सो इट वाज रियली लग रहा था कि बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है, सब कहीं कोई भीड़ हमें नहीं मिली। एंड ऑल द मार्केट्स वर ओपन, सब कुछ था। वो कह रहे थे लास्ट ईयर तक मार्केट क्लोज रहती थी, बट इस साल से ही मार्केट ओपन होनी शुरू हुई है रमजान में भी। सो इवनिंग में हमें एमिरेट्स मॉल गए, जहाँ पे बच्चों के लिए हमें मैकबुक लेना था। और मैकबुक पे सेम उसी दिन जो हमें मैकबुक चाहिए था मॉडल, उस पे इतनी स्पेशल डील थी कि वो हमने उन्होंने कहा कि मैम आज ही ये डील शुरू हुई है। एंड द पर्सन जो हमें असिस्ट कर रहा था उस चीज के लिए, उसने अपना नंबर एंटर करके हमने कार 4 से वहां से परचेज किया। उसने हमें 108 दिरहम हमें रिफंड भी हो गए उसमें, जिससे हमने और भी शॉपिंग की। और जितनी भी हमने शॉपिंग की उसको उस पे हमें 85% टैक्स रिफंड हर चीज पे मिल गया, जो भी अबव 250 दराम में था। और मैम इट वाज रियली अ लग्जूरियस ट्रिप फॉर ऑल ऑफ अस। और मेरी सिस्टर, छोटी मेरी कजन सिस्टर, हम 18 इयर्स के बाद में उससे मिली। शी इज देयर इटसेल्फ 12 इयर्स से दुबई में ही है। और मतलब वो हमने सारा बचपन की सब वो मेमोरीज जो थी वो हमने पूरा अच्छे से, हमें लग रहा था कि हम वहीं पे है। लाइक मुझे लगा ही नहीं कि हम बड़े हो गए हैं। इमिग्रेशन के टाइम पे मैम जब हम वापसी आई, मैम देयर आर सो मेनी थिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या छोड़ू क्या बताऊं, बट सब बोर भी हो जाएगी शायद, इसलिए मैं शॉर्ट रखना चाह रही हूँ उसको। सो इमिग्रेशन के टाइम पे जब हम दिल्ली एयरपोर्ट आए तो इतना क्राउड था वहां पे। तो बच्चे कहते हैं ओ वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, मजे कर रहे थे कि वहां पे सब इतना कूल था, इतना स्मूथ था। मतलब 5-6 दिन हमने वहां पे हॉर्न की आवाज तक भी नहीं सुनी, यहाँ के हो गया था। सो सब मस्ती कर रहे थे कि, लेकिन जैसे ही हम आए एक काउंटर हमारे सामने ही खुल गया, वहां पे बस एक अंकल गए और उसके बाद हमारा इमिग्रेशन हो गया। कस्टम ड्यूटी वगैरह कहीं कोई कुछ
चेक इन वगैरह कुछ नहीं हुआ, चेकिंग नहीं हुई और आराम से हम स्मूथली अपने घर पे रात 8:15 8:30 तक आ गए थे। अनपैक किया, आपको मैसेज किया, 12 साढ़े 12 में सोई मैम। एंड वहां पे भी आई वॉज ट्राइंग कि मैं वो पोस्ट करूं डेली लिंक, मुझे अच्छा लगता था पोस्ट करना, बट वहां का टाइम यहाँ से 1.5 घंटा पीछे है, तो वहां के 5:30 मतलब यहाँ पे वो सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होता था, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाई एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड सो थैंकफुल टू पूनम के वो डेली मैसेज वो पोस्ट करती थी, मैं देखती थी हाँ लिंक आ गया, अच्छा किसने शेयर किया, अनु ने और उन्होंने, सो आई एम सो थैंकफुल एंड मैम यू हैव चेंज आवर लाइव्स। आज का जो आपने टॉपिक लिया वर्क्स लाइक मैजिक, मेरे वर्क पे मुझे लग रहा था मैं इस बार थोड़ा सा ओवर प्रेशराइज्ड हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे लोड ज्यादा लग रहा था, बट आज का आपने जो टॉपिक लिया उससे मेरा दिमाग और खुल गया कि शायद आई एम केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, इसलिए मुझे वो लोड ज्यादा मिला एंड आई एम गोइंग टू डू इट, लाइक आई एम गोइंग टू रॉक अगेन, आई एम रेडी विद माई ऑल माई एनर्जीज। और एक और छोटी सी बात कि अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है, तो एवरी मार्च माय हस्बैंड ट्राइज के हम एवरी मार्च वीक मतलब ये एंड वीक में वो मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप फ्रॉम माय हस्बैंड साइड फॉर माय बर्थडे, many gifts and matlab lovely family time, so thank you so much ma'am and love you a lot, love you everyone for this group, means I wait कि मैं अपने ग्रुप में शेयर करूं and ma'am you are looking super hot today, हमें वहां पे जू में गए थे, अंडर वाटर जू में, so I saw a lady there, तो मैंने कहा ओ दीप्ति मैम, तभी मेरे हस्बैंड ने बोला अरे दीप्ति मैम यहाँ पे कहाँ से आ गई, मतलब वहां पे भी हमें मैजिक क्यों मिल गया कि हाँ जी हम इंजॉय कर रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स जो दीप्ति मैम की है वो हमारे साथ है, सो यू आर देयर ऑल्सो विद अस, थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज माय शेयरिंग, थैंक यू। वंडरफुल शेयरिंग प्रियंका, तुमने तो पूरा दुबई का हमें पिक्चर ही दिखा दिया, So लवली beautiful. लवली Very beautiful. And Priyanka की ब्यूटीफुल, pictures भी एक्चुअली इतनी अच्छी आई ऑसम। है. She's looking like a super hot model. And I guess there's no wonder, like प्रियंका के लिए तो सब कुछ possible है ऐसा लगता है. Beautiful sharing. Very There's no wonderful. wonder you like पहले ही पता था you are going to share all this. थैंक यू सो मच एंड इवन आई वाज, मतलब रात को मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे ये था मुझे सुबह उठ के शेयर करना है 10 pictures. प्रियंका, मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी शेयरिंग, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस, लाइक रियली अमेजिंग एंड तुमने जो एक दो पिक्चर्स, आई थिंक हाँ तुम्हारी डीपी मैंने देखी थी व्हिच इज डेजर्ट सफारी एंड दिस इज इन शारजा दैट यू मस्ट हैव गॉन राइट, वो दुबई से थोड़ा सा दूर है and this place is so amazing and I can totally resonate with what you were telling because उसमें जिस तरह से you know they take you on the desert safari, it's actually you know the whole van jumps right, वो गाड़ी हवा में जाती है फिर ड्यून पे वापस लैंड करती है, so it is like yeah it is a lot of fun and I'm so happy that you all you know like enjoyed so much बच्चों के साथ में and wish you many many more such trips, खूब पूरी दुनिया घूमो, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो और बस ऐसे ही ग्रो करते जाओ, खुश होते जाओ, मजे करो अब आप हो ना तो हम वेरी गुड, यस श्योर मैम, आप हो ना हमारे तो हम सब करने वाले हैं, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, कभी कहीं फ्लाई करके इधर उधर जाओ, मजे करो, सोचना नहीं पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, है ना, आई मीन लाइक दैट द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट वी कैन ऑल हैव, लाइक freedom from finances, freedom for health, you know, everything matters. It is not just that health भी अच्छी होनी चाहिए, पैसा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना, और and the career has to go good as well, the best. So And very when good. you're feeling tired, my husband said तुम इतना फील कर रही हो, दीप्ति मैम को देखो वो तो हमेशा ही ट्रेवल करती रहती है, so it's not just this thing, तो get ready, तो फिर एकदम एनर्जी आ जाती है, यस दीप्ति मैम रेडी होती है, मजे जब मजा होता है ना दिल में तो थकान नहीं होती है, yes. And ma'am, abundance of money, abundance of everything is there. We enjoyed a lot. जो चाहा खरीदा, जैसा ट्रिप चाहा, मतलब हमने सोचा ही नहीं कहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब बहुत 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 मजा किया। It's like really amazing. Thank you ma'am. I'll have to log in, हाँ जी, I'll have to log out now, one sec, sorry. Yes, ma'am, love you ma'am. Have a safe flight, ma'am. Have a beautiful Enjoy your trip. flight. Thank you, Dipti. And enjoy. जल्दी आ लोग जाओ मैम, वालों का तो थैंक यू। Thank you, ma'am. they are all waiting for you.
Thank you. These lovely Thank people. you. So thank you so much, everyone. Thank Thank you, you, Priyanka, Priya. for Thank lovely you. sharing. Thanks, Priya. Thank Thank you, you, so Priya. much for listening to me. Thank you, ma'am. Deepti Thank ma'am, you so for much. giving us the Priya. opportunity. Thank you, And ma'am. thank you to the Excellent wonderful sharing, readers, of course. Priyanka. Wonderful Excellent sharing. sharing, yeah. Yes. So y'all know about this trip So, of mine, how this manifested, this particular trip. So I had to be in Bombay on the 28th, 29th and 30th for work. 3 दिन मेरा प्री स्केड्यूल था और मेरा वैसे भी क्वार्टर प्लान बहुत पहले बन जाता है, तो ये मेरे प्लान में था that I had to go to Mumbai, and then suddenly out of the blue, you know, this got cancelled, and plus मेरा बहुत ज़्यादा travel हो रहा था, and I needed to be in Delhi for some work as well. So, you know, that Bombay trip got cancelled, but, you know, I saw the Bombay group being super excited about my coming, and people are coming from here and there. I mean, they're coming to Bombay only to see me, and ये सब plan हो गया था. Their party got booked, the venue got booked, the menu got planned, you know, मतलब to that detail. And my Bombay trip cancelled. Imagine, official. Then I, you know, like didn't have the heart to tell anybody that I, you know, like I'm not coming to Bombay and my office, you know, I have to be in Delhi for some very important reasons. And so it was like that. So the day I came to know, you know, so when I was in Goa last Saturday, then I quickly booked my flights to Bombay. So this is totally my personal trip, and I'm only coming to attend the party you all have hosted, you know, and the excitement in the Bombay group that was going on. That ये करना है, वो surprise है, ऐसे party करना है, ऐसे जाना है, you know. So I'm only coming to spend an evening with all of you at my personal, this is my personal trip now. So it is for this reason that I'm actually coming into Bombay to spend a day with all of you, and the evening and the night or whatever, however long you all want me. It is only dedicated to the Mumbai group and to so many people being super excited about अपने कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, कहाँ जाना है, कोई कहाँ, जो बाहर से आ रहे हैं वो कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे. So then here it goes. So my day is dedicated to you, and I'm coming with a lot of intention for each of you that, you know, henceforth your life will never be the same again. Yes, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Log much, out. ma'am. Lots of It's love all to each of you. manifestation of people. So Strong much manifestation we of are people. जब सेशन शुरू हुआ था तो सोनिया बोल रही थी ये बात, सोनिया बोल रही थी जब सेशन शुरू हुआ था कि Prima, we are you wanted very. to share something? Prima, आपका hand raised था, कुछ बोलना चाहोगे? मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ आज मुंबई के लिए, तो won't be able to. Prima is traveling all the way to Mumbai. Prima. Prima is coming to see me. And she's also Yeah. volunteered to host all the others who are flying down to Bombay only to meet me. So Prima has been so generous. You know, she said, I've got a house in Mumbai and nobody needs to stay in a hotel. And this is what Anu had told me. And I was so touched, Prima, by this gesture. I mean, you are incredible. Because when people were thinking about kahan rukenge, hotel book kare, wo kare, you know, and then you were like, mera ghar hai wahan pe. कोई भी वहाँ के रह सकता है. So that was really wonderful. So sweet of you. Thank you so much. And see you all very soon. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye-bye. Have a safe journey. Thank you so much, everyone, for Enjoy attending Bombay the wale. sessions. Thank you. Thank you, Priya ji. And Thank you. I think we should, yeah, we should conclude the session now. And please, Bombay wale share karna pictures apne. I'm sure you will do that and have a blast with ma'am. Obviously, like we do have. हमारे साथ share करना. Thank you so much, and thank you everyone for listening, and do the practices. Thank you, And Priya both ma'am. the practices of the books are important for us. The works like magic practice and the meditation part also. Meditation को जैसे मैम silence कहती हैं, वैसे ही we should try and observe silence for 3 to 15 minutes any time during the day. जब भी आपके पास time हो, that particular thing like makes a ground for the manifestations to occur, for the intuitions to come into the life. So thank you so much, everyone. Thank you, Poonam ma'am, for being a very active participant today. The most active participant you were. You were the reader, you took the notes, and you were the co-host, and multi things you did today. Thank you Thank so you much. so much, Thank Priya. I you. love to do that. Really, thank you so much. Thank you, Poonam ji. Thank you, Priya. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Have ma'am. a lovely weekend. है ना Bye bye. वहाँ पहुँचते हैं. Have a phenomenal weekend, everyone.